Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to discuss about the formal charge as well as the geometrical structure or shape of a different molecules. But before starting that, let us revise the topic which we had discussed in the last video, that Born-Haber cycle. Now what do you understand about the Born-Haber cycle? We can say that the formation of ionic bond is a depends upon the lattice enthalpy. जो ionic bond बनता है वो lattice enthalpy पे depend होता है. अगर if in the molecules between the two atoms if the force of attraction is more, then the lattice enthalpy will be more, and as the lattice enthalpy will be more, then it easily form the ionic bond. अगर lattice enthalpy अगर ज्यादा है तो वो easily ionic bond form करेगा. As for example, हमने एक example भी लिया कि NaCl का एक क्रिस्टल लेते हैं तो Na+ और Cl- है, क्योंकि Na means alkali metal and it has a tendency to donate the electron, whereas chlorine is a halogen element and it has a tendency to gain the electron. So between the Na and chlorine, whatever the bond is formed, that bond is said to be the ionic bond, right? And what is the formation enthalpy? That whatever the bond it can form, the formation enthalpy, that is a minus 411 kilojoule per mole. Now how you can get that formation enthalpy? So first of all, if you take the NaCl, solid NaCl crystal, then how you can get the Na plus 1 mole of Na plus gas and 1 mole of Cl minus gas? So first of all, at a room temperature you all know that the sodium will be in the form of solid. So you have to convert it in the form of gas. So you require the sublimation enthalpy. First one, आपको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैं क्या बोलता हूँ? सब्लिमेशन. गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में आयोनाइजेशन मींस आयन में कन्वर्ट करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH. देन आफ्टर, एज यू ऑल नो दैट द क्लोरीन इज अ डायटोमिक, बट हियर इन 1 mole of NaCl crystal it require only 1 mole of chlorine, so that is decomposition of the chlorine will be required, so delta D/2H. Then after decomposition you have to convert in the form of ion, so it has a tendency to gain the electron. So to gain the electron, whatever the amount of energy is required, that is called the electron gain enthalpy, that is delta EGH. And the last one, that is a 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus is react with each other, it can form a 1 mole of NaCl, and that enthalpy is said to be the lattice enthalpy. And when you add all this and change in the enthalpy, then you can get what? 411 kilojoule per mole, and minus sign indicate that it's stability, right? It's more stable. Okay, so all these things we have discussed yesterday. Now today let us start about the formal charge. Now what do you understand about the formal charge? Formal charge, if you want to find out the formal charge, let us suppose if I take the oxygen, the equation will be given to find out the formal charge. Lewis structure to find out the formal charge. Formal charge, that is equals to what? That is equals to the total number of electron of an atom, means total number of valence electron in atom minus what? Non-bonding electron, total non-bonding electron minus 1/2 bonding electron, total bonding electron. Okay, so this is one equation, simple equation. Now let us suppose if I take one example just like a ozone. मैं ओजोन लेता हूं, तो ओजोन का यस्टरडे हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो क्या आएगा? तो ये ओजोन है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस. अभी देखो, अभी ये पहला ऑक्सीजन है, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला. Now I have to find out the formal charge of each and every oxygen. How I can find out the formal charge?
यहाँ पे देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, पहला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। चलिए तो क्या आएगा, तो पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6, तो आई कैन राइट डाउन 6 ही है। और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 2, तो 2 माइनस 1/2। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 minus 2 minus 1/2 into 6, so that is equals to 3। तो यहाँ पे क्या आया, +1, तो ये +1 आ गया, इसीलिए यहाँ पे +1। अभी ये ऑक्सीजन का देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन। चलो तो ये सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस 4, 1/2 बॉन्डिंग मींस 4, राइट। 6 minus 4 minus 2, so it will be 0, understand, so here it will be 0. Now third one, that is a formal charge of oxygen, that is a third, right। So how much, 6 minus, यहाँ पे क्या आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 minus 1/2 bonding 2, 6 minus 6 minus 1, so -1, understand। So this is how you can find out the formal charge of each and every element which are present in the particular compound, right। I will give you some examples। Let us suppose if somebody asks you the question, just like अगर आपको यहाँ पे CO3 2 आयन का फॉर्मल चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है। पहले तो CO3 2 का फॉर्मल चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो तो यहाँ पे कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे देखो पहले तो कार्बन के 4, फिर बाद में 3 into ऑक्सीजन के 6 है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, सो 4 + 18 + 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 24 इलेक्ट्रॉन। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द चार्ज, देन हाउ I can find out the formal charge? Let us see. Formal charge, that is equals to what? Valence electron minus non-bonding electron minus number of bond, right। So this is how you can find out directly। as for example कार्बन है, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज ऑफ चलो कार्बन का क्या है, कार्बन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सी 1 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -2 3 4 5 6 और यहाँ पे माइनस। अभी देखो कार्बन की 4 वैलेंसी इज देयर, सो हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 0, सो इट विल बी 0 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड हाउ मेनी, 1 2 3 and 4, सो आई कैन राइट डायरेक्टली 4, सो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, इट विल बी 0, राइट। अभी ऑक्सीजन देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। चलो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज, चलो देखते F that is equals to how much, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 4 और बॉन्डिंग कितना है, तो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। चलो ऑक्सीजन सेकेंड का फॉर्मल चार्ज F इक्वल्स टू, पहले तो 6, सेकेंड में क्या है 6
माइनस बॉन्ड कितना है 1, सो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज -1, राइट, एंड ऑक्सीजन 3, राइट, सो थर्ड ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज 6 -6 -1, so that is equals to -1. Understand? So this is how you can find out the formal charge of each and every element which are present in the particular compound. कोई भी compound में किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज. इज इट क्लियर? राइट, चलो नोट डाउन कर लो. Now let us see the structure, geometrical structure of molecules. चलो देखते geometrical structure of molecules. Geometrical structure of molecules, right? Now क्या है इसमें? In which the central atom of molecules has no non-bonding electron pair. Central atom of molecules have no non-bonding electron pair. That means हमने ऐसा पढ़ा था कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उस एटम को हम सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं और उसके पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए नहीं. तो वैसे कंपाउंड हम पहले देखेंगे. चलो देखते हैं. पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लिखता हूं, number of electron pair, right? फिर बाद में आएंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, फिर बाद में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और फिर बाद में आएगा एग्जाम्पल, राइट. चलो देखते. पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है कि ये तो सेंट्रल एटम, यहाँ पे P और यहाँ पे भी P, और यहाँ पे ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 180 डिग्री. ऐसे क्लियर? सो दिस वी कैन से इट इज अ लीनियर. इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर. और जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? 2 अनदर एटम के साथ. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? लीनियर है तो s की हाइब्रिडाइजेशन. एंड इफ यू टेक द एग्जांपल देन BeH2 BeCl2 HgCl2, राइट. यहाँ पे देखो बेरिलियम है तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 and 7. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो बेरिलियम इज अ सेंट्रल एटम और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, राइट. तो ये पहला हुआ. चलो सेकेंड वन, just like if the number of electron pair is just like 3, अगर 3 है तो 3 है तो यहाँ पे A 1 2 and 3 B and B,
right? And what is the shape? There is a trigonal planar. Trigonal planar. Okay. Now angle, you have to know the angle. Now here यहाँ पे angle क्या आएगा 120 डिग्री और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2. अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैसा कोई भी कंपाउंड तो bf3 एंड bcl3 यहाँ पे देखो बोरॉन है सेंट्रल एटम 1 2 एंड 3, सो f एंड f. इज इट क्लियर? तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो बॉन्ड बनाते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर 4 हो तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ए 1 2 3 एंड 4 d एंड d, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. सो दिस वी कैन से टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन यू ऑल नो दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एग्जांपल लेते हैं तो CH4 मीथेन. इज इट क्लियर? कार्बन के चारों और आई कैन आल्सो राइट NH4 प्लस. कार्बन के चारों 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. इज इट क्लियर? राइट. Then after it takes what? Just like a number 5 electrons are there, right? So 5 electron, that means you can say the trigonal bipyramidal is there. A 1 2 3 4 and 5. B P and B. This we can say trigonal bipyramidal. Okay. So hybridization is how much? So sp3b and d. Why? Because 5 hybrid orbitals are there. 1 2 3 4 and 5. Is it clear? An example is pCl5. Phosphorus outermost orbit 5 electron. So 1 2 3 4 and 5. Here chlorine and chlorine. Is it clear? Right? And the last one, let us say that if the 6 electrons are present in the outermost orbit, then we can say it is an octahedral A. 1 2 3 4 5 and 6, both D, right? And here this we can say octahedral. Hybridization is sp3d2. And example, which example is that we can say it is a SF6. Why? Because in the sulfur, in the outermost orbit, how many electrons are there? That is a 6 electron, and all the 6 electron can share with the 6 chlorine atom, right? So S 1 2 3 4 5 and 6. F and F. Is it clear? So this is all about the geometrical structure of what? Of which the central atom does not have any non-bonding electron pair. यहाँ पे जो central atom है उसके पास कोई भी non-bonding electron pair है नहीं. Understand? So note down all these things. चलो फटाफट. Okay, now next one देखते हैं कि central atom having what? Non-bonding electron pair. Geometrical shape of a central atom having non-bonding electron pair. Let us see. चलो यहाँ पे have non-bonding electron pair. तो पहले molecular type. Is it clear? Next one, number of bonding pair. Number of bonding pair. Number of non-bonding pair. Right? Then after arrangement of electron pair. Arrangement of electron pair.
Then after it comes what? The shape and example. Shape and last one it is example. Example. Let us see. अभी देखते हैं पहला, चलो पहला A B to E. ये A जो है ना वो सेंट्रल एटम है, B that is the bonding pair and E that is the non bonding pair. यहाँ पे देखो बॉन्डिंग पेयर कितना है? दो, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग है, तो उसका शेप कैसा आएगा? तो A इज द सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग और दो बॉन्डिंग, तो इसकी अरेंजमेंट कैसी हुई? तो ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, क्यों? क्योंकि ये कंसीडर होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज आल्सो कंसीडर, राइट? पर इसका शेप क्या होएगा? तो ये कंसीडर नहीं होता, तो इसका शेप क्या आएगा? बैंड, तो यहाँ पे लिख दो बैंड शेप, अंडरस्टैंड? क्यों? और एग्जांपल, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ SO2, तो सल्फर 1 2 3 4, is it clear? One non bonding and two is a bonding electron pair, is it clear? चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं AB3E. AB3E, 3 bonding 1 non bonding, अंडरस्टैंड? और यहाँ पे देख एक नॉन बॉन्डिंग 1 2 and 3, B and D. Is it clear? So this we can say tetrahedral. यहाँ पे क्या आएगा? टेट्राहेड्रल. और वहां पे कौन सा शेप आएगा? तो ट्राइगोनल पिरामिडल. सो कैसे? ट्राइगोनल पिरामिडल, और जिसमें एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्डिंग मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 होना चाहिए. तो 5 किसमें? नाइट्रोजन, तो NH3, in which nitrogen 1 2 and 3, हाइड्रोजन 3 बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? ये एग्जांपल हो गया. फिर बाद में नेक्स्ट वन, चलो नंबर 3, नेक्स्ट वन AB2E2. AB2E2, 2 बॉन्डिंग 2 नॉन बॉन्डिंग, राइट? कैसे? तो यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग. इज इट क्लियर? सो द शेप इज, यहाँ पे शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल क्योंकि 4 है ना, हाँ. और फिर बाद में ये कंसीडर मत करो, तो शेप क्या आएगा? बैंड. तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका एग्जांपल H2O, ऑक्सीजन 1 2, हाइड्रोजन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 नॉन बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग. इज इट क्लियर? राइट? ये वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इज इट क्लियर? 2 बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग, राइट? AB4E भी देखते हैं, नंबर 4, AB4E. तो ये 4 बॉन्डिंग 1 नॉन बॉन्डिंग, राइट? तो 4 बॉन्डिंग और 1 नॉन बॉन्डिंग, सो दिस वी कैन से 1 2 3 4 बॉन्डिंग है और एक नॉन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन पेयर. Is it clear? So this we can say is a trigonal bipyramidal and the shape is seesaw. Trigonal bipyramidal और उसका शेप seesaw. राइट? देखो seesaw के जैसा शेप होता है उसका. और एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल SF4. चलो SF4, central atom sulfur, so non bonding 1 2 3 and 4, fluorine and chlorine. क्योंकि सल्फर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और 2 नॉन बॉन्डिंग. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 में AB3E2. अभी देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे A B B B और यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग. तो ये शेप कौन सा हुआ? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और
यहाँ पे शेप टी शेप, जस्ट लाइक सी हियर टी शेप, इज इट क्लियर? सो इसको टी शेप बोलते हैं और एग्जांपल होता है ClF3 क्लोरीन 1 2 3, ये नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, इज इट क्लियर? एंड द लास्ट वन, let's see, last one, it will be given AB5E, AB5E, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, राइट? तो A सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 आर एक नॉन बॉन्डिंग, B B B B B 6 है, तो we can say octahedral and this we can say octahedral or square pyramidal, square pyramidal, राइट? और एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिया F5, चलो Br ले लेते हैं F5, तो Br, राइट? यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 F F F F और F, is it clear? So all this in which compound having a non-bonding and bonding electron pair, and these are the molecular type. अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि ये जो AB4E है तो उसका शेप कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका शेप कौन सा होगा, सीसॉ। AB3E2 है तो टी शेप, AB5E है तो स्क्वायर पिरामिडल, राइट? ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ओके? सो इन दिस वीडियो अप टू हियर इट्स इनफ. So in the next video we are going to discuss about the VSEPR principle. Okay? So thank you very much.